Hello students, I am Sonu Kasana and this is chapter second, Inside Our Earth. So this is the book exercise of the chapter. So let's do it. The very first question is answer the following question, and first question is what are the three layers of the earth? What are the three layers of the earth? Okay, let's start. Answer is the three layers of the earth are the crust, the mantle and the core. The crust, the mantle and the core. Okay students, I hope आपको समझ आ गया होगा. The second question is what is a rock? What is a rock? What is a rock? rock कहते हैं चट्टान को. चट्टान क्या है? ओके चलिए जी सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं. Any natural mass of mineral matter, any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. Any natural mass of any natural mass of mineral matters that makes up the earth's crust is called a rock. Okay students, चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका. थर्ड क्वेश्चन का आंसर नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स. 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 चलिए जी आंसर लिख लीजिए. आंसर है आपका द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक, sedimentary rocks and metamorphic rocks. The three types of rocks are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Question 4 है हमारा. How are extrusive and intrusive rocks formed? How are extrusive and intrusive rocks are made? Rocks formed है ना. चलिए तो आपका ये होता है extrusive rocks are formed by the molten lava which comes on the earth's surface and rapidly cools down. Extrusive rocks are formed by the molten lava which comes on the earth's surface and rapidly cools down. ओके चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाइए. टू बिकम सॉलिड, यहाँ तक सॉरी, टू बिकम सॉलिड. नेक्स्ट है आपका intrusive. When the molten magma cools down deep inside the earth's crust and solid rocks are formed are called intrusive rocks. Are called intrusive rocks. Question 5 आपका What do you mean by a rock cycle? रॉक साइकिल से क्या मतलब है? तो क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है when one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner, then this process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. एक बार फिर से देख लीजिए. One type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner, then this process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. What are the uses of rocks? चलिए जी इसका आंसर लिख लेते हैं. The usage of rocks are, first one is hard rocks are used in construction of buildings and roads. Hard rocks are used in construction of buildings and roads. Second, some rocks are shiny and precious. Therefore used for making jewelry. Third one, rocks are made up of different minerals. Rocks are
मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स and are very important to humankind Number 4, some are used as fuels. For example, coal, natural gas and petroleum. Number 5, soft rocks are used for making talcum powder, chalk, etc. है ना, आपको शायद ही पता हो, जो पाउडर आप यूज़ करते हैं वो रॉक्स से बनता है, चट्टानों से बनता है, टैल्कम पाउडर, घमौरियों वाला। गॉट इट। चलिए जी, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हैं? चलिए जी, आंसर, द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. The rocks which are formed due to conservation of igneous and sedimentary rocks under great heat and pressure is called metamorphic rocks. Okay students, चलिए जी, टिक द करेक्ट आंसर पे आ जाते हैं. The rock which is made up of molten magma is. The rock which is made up of molten magma is, तो आपका आंसर हो जाएगा इग्नियस. द सेकेंड वन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, कोर, मेंटल. तो आंसर आपका हो गया कोर. ओके स्टूडेंट्स, कोर. चलिए जी, आगे चलिए. द थर्ड वन इज द गोल्ड एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ. द गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स, है ना. ये ऑप्शंस लिखेंगे आप, फिर आंसर लिखेंगे मिनरल्स. नंबर 4 है आपका, 1 मिनट आपकी वीडियो का कोड रहेगा इसका CR. नंबर 4, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर सेडिमेंट्री रॉक. रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स. 5th आपका हो गया, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट. The thinnest layer of the earth is crust. ओके स्टूडेंट्स, चलो मैच द फॉलोइंग पे आ जाते हैं. मैच द फॉलोइंग आपका ये है. सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे. कोर, मिनरल्स, रॉक्स, क्ले, सियाल. फिर आ जाते हैं अर्थ सरफेस यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड अलुमिना, हैज़ डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन और इनर मोस्ट लेयर. अब सही मिलान कैसे करना है इसका? 2 आपके एक्स्ट्रा दिए हुए हैं इसमें. यहाँ पे चेंजेज इनटू स्लेट एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और टू द रॉक्स. आ जाइए आंसर्स देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहला है कोर के सामने लिखेंगे आप इनर मोस्ट लेयर. 6 बना करके आप तभी उसके आंसर्स लिखेंगे, पूरा ऊपर वाला सही बनाएंगे और उसका फिर मिलान करेंगे. सामने नहीं लिखेंगे आप, एरो से मिलान करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा हैं इसलिए आप एरो यूज़ करेंगे. चलिए जी, तो कोर का आंसर आप मिलाएंगे ई पर, इनर मोस्ट लेयर. फिर आप मिनरल्स का मिलाएंगे डी पर, हैज डेफिनाइट केमिकल्स कंपोजिशन. फिर आप रॉक्स का मिलाएंगे यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स. क्ले का मिलाएंगे चेंजेस इनटू स्लेट. सियाल का मिलाएंगे मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना. ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स. चलिए जी, अब हमारा बस ये लास्ट बचा हुआ है. वीडियो कोड मैंने आपको बता ही दिया है. प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करें, अच्छे से वीडियो देखा करें, पॉज कर करके वीडियो देखा करें, आगे बढ़ाया करें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन समझना भी ज़रूरी है. चलिए जी, आंसर्स लिख लेते हैं आप. गिव रीजन्स हमारे ये क्वेश्चन है. तो गिव रीजन्स में पहला क्वेश्चन आपका आता है, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो आपको इसका रीज़न बताना है. मैं बता देता हूँ इसका आपको रीज़न. वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसमें बहुत तेज़ ताप है और दाब है. एंड लाइज 6000 किलोमीटर बिलो द ओशियन फ्लोर. और ये समुद्र तल से भी 6000 किलोमीटर नीचे है. वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव देयर बिकॉज देयर इज़ नो ऑक्सीजन. हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और फेवरेबल कंडीशन, और ना ही वहाँ की स्थिति ऐसी है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए जी,
सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स और लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। तो आपको सेकंड वाला नहीं करना है, आपको करना है थर्ड वाला, लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। चलिए जी इसका आंसर चेक कर लेते हैं, लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल, थर्ड का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा आई होप। आंसर लिखेंगे लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, इट इज़ सेडिमेंट्री rock. Limestone is changed into marble because of extreme heat and pressure as it is a sedimentary rock. Okay, thank you student, thank you very much.